اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد بآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت عزائے فاطمیہ کی سلسلے کی ان تمام مجالس میں جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے اس میں شریک. یہاں وہی لوگ آتے ہیں جن کے ناموں پہ وقت کا امام دستخط کرتا. اہل بیت کا گھرانہ ہے. ان کے نوکر زمین پہ نہیں چنے جاتے، آسمان پہ چنے جاتے ہیں. ان کے گھر پہ جھاڑو دینے والے، ان کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے، ان کی مصیبتوں پہ رونے والے، ان کی فضیلتیں سن کے نعرہ لگانے والے اچانک میں پیدا نہیں ہوتے. نسلیں پاک ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ پیدا ہوتے ہیں. سمجھیں گے آپ؟ بہت کم الفاظ میں اور بہت کم وقت میں ڈھیر ساری باتیں آپ کے سامنے کرنی بھی ہیں اور رکھنی بھی. آصف بھائی بہترین کلام تھا آپ کا ماشاءاللہ سے. آپ ہر جگہ ماشاءاللہ دلی کی لاج رکھتے ہیں اور اس وقت میرے یہ سب جوان بیٹھے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک ایسے موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں کہ بہت کم وقت میں کچھ کہہ پاؤں، کچھ سنا پاؤں. میرے موضوع کا پہلا لفظ ہے انسان، دوسرا لفظ ہے عبادت اور تیسرا لفظ ہے حسین. انسان، عبادت اور حسین. اسے سمجھیے گا، حالات کو سمجھیے گا. گھر جائیے گا تو فخر کیجیے گا کہ آپ شیعہ ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں اور سمجھا بھی رہا ہوں. دلی پولیس نے کسی بھی آرگنائزیشن کے کسی بھی ریلیجیس سوشل پروگرام کو بلاسٹ کے حادثے کے بعد 30 سے 50 آدمی سے زیادہ کی پرمیشن نہیں دی ہے. آپ اکلوتے ہیں جنہیں پرمیشن دی گئی ہے. فخر کریں آپ اس بات پہ، آپ اسے محسوس کریں. جب مجھ سے پولیس آفیسر نے ذرا بند کر دیا، مجھ سے جب پولیس آفیسر نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے اس وقت پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں پرمیشن نہیں ہے کہ ہم پرمیشن دیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ آپ نہیں پرمیشن دیں. تو کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی یہ پرمیشن نہیں ہے. ہم نے کوئی مشاعرہ نہیں رکھا ہے جس میں 4 شاعر آئیں گے شعر پڑھیں گے. ہمارا کوئی ساہتیہ کا پروگرام نہیں ہے. پیغمبر کی بیٹی، ان کی شہادت آپ سمجھیں کہ منانا ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ بھی. اس نے کہا اس کا مطلب پہلے سے ہو رہا ہے. میں نے کہا جی بالکل پہلے سے ہو رہا ہے. اس بات کا کچھ سمجھ میں آیا؟ مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کے یہاں کوئی تازہ نہیں ہے. ولادتیں بھی وہ مناتے ہو جو ولادتیں دنیا میں کہیں ہوئی نہیں. بتاؤ کعبے میں کسی کی ولادت ہوئی ہے تو دکھاؤ. اسی لیے میں جملے کہا کرتا ہوں، پوری توجہ، اسی لیے میں جملے کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا مل کے علی سے سارے کمالات چھین بھی لے تو کعبے کی ولادت نہیں چھین سکتی.
میرے ساتھ رہنا. اگر سارا دنیاوی معیار چھین بھی لے تو علی کا علم چھین نہیں سکتی. ایک جملہ میں نے بنارس کی مجلس میں کہا تھا, میدان چھین بھی لے تو ذوالفقار چھین نہیں سکتی. سلامت رہے. ہمارے یہاں اچانک کا کوئی ہیرو نہیں ہے کہ جی اچانک میں آ گیا, پردہ اٹھا اور آ گیا اور آپ نے کہا جی یہ ہیرو ہے, دنیا مان رہی ہے آپ بھی مانو. نہیں, دنیا نہیں بھی مانے تو ہم اسے مانتے ہیں جو حق ہوتا, اور دنیا مانے بھی تو ہم اسے نہیں مانتے جو باطل ہوتا ہے. اصول صاف ہے, اسی اصول پہ ہماری زندگی چلتی ہے. تو چلیں اب ذرا انسان کی اسٹڈی کرتے ہیں. انسانوں کی دنیا میں ڈھیر سارے انسان, میری آواز ریکارڈ کی جا رہی, انٹیلیجنس مجھے سن رہا کہ میں شیعوں کے درمیان کیا بول رہا ہوں. اس لیے گفتگو بھی وہ کہ غیر بھی سنے تو یہ مانے کہ یہ ہندوستان جوڑنے والے لوگ ہیں, ہندوستان توڑنے والے لوگ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, محسوس کرتے چلے جائیے. انسانوں میں ڈھیر سارے لوگ ہیں, کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سردار بھی ہیں, جین بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. مسلمانوں میں سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, حنفی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, ڈھیر سارے لوگ ہیں. سب میں انسان اور انسانیت کے چرچے ہوتے ہیں, سب میں عزتیں بیان ہوتی ہیں, سب میں عزت نفس کا تذکرہ ہوتا ہے. پر انسانوں میں سب سے محترم انسان کون ہے؟ انسانوں میں سب سے محترم انسان وہ ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. ہاں ٹھہرنا, یہ جوانوں کے لیے اہم جملہ ہے. انسانوں میں سب سے محترم انسان جو کون ہوتا ہے محترم؟ ذمہ دار. یاد رکھیے گا, میں ابھی ذمہ دار کو آپ کے گھر میں دکھاتا ہوں, آپ محسوس کیجئے گا کہ نہیں بات صحیح ہے. 24 سال کا وہ جوان جو اپنی ماں سے کہتا ہے کھانا چاہیے, ماں کھانا بناتی ہے, بتاتا ہے کہ نمک کم ہے, تیل زیادہ ہے, فلاں چیز ایسی ہے, فلاں چیز ویسی ہے. یہ ذمہ دار ہے؟ نہیں, یہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار وہ ہے, جملہ سمجھیے گا خدا کی قسم حسین بھائی, ذمہ دار وہ ہے جس کے شام کو گھر واپس لوٹنے کا انتظار اس کی ماں نم آنکھوں سے کر کے کہتی ہے بیٹا تیرے ذمہ دار بازوؤں سے کئی غیر ذمہ دار شکم بھرے ہوتے ہیں. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا ہے. بیٹا تیرے بازوؤں کی کمائی سے گھر کے کئی غیر ذمہ دار لوگ روٹی کھاتے ہیں. ذمہ دار وہ ہوتا ہے جسے جگانا نہیں پڑتا, ذمہ دار وہ ہوتا ہے جسے اٹھانا نہیں پڑتا, ذمہ دار وہ ہوتا ہے جسے بتانا نہیں پڑتا, ذمہ دار وہ ہوتا ہے جسے سمجھانا نہیں پڑتا. اب میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہنا. دنیا میں ایک ملک کا راجا, اشارے کرتا چلا جاؤں گا سمجھتے چل جانا, ایک ملک کا راجا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا حاکم ہے. جس کو چاہتا ہے لڑاتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیچ میں ٹھہرواتا ہے, جس سے چاہتا ہے ڈیفنس کی ڈیل سائن کرتا ہے, جسے چاہتا ہے بیچ سے روک دیتا ہے. ہر جگہ کہتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا بادشاہ ہوں. جس کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا راجا ہے, اس کی غیر ذمہ دار صورت نے سمجھنا میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, سمجھنا میرے جملے کو. اس کے غیر ذمہ دار صورت اور اس کے غیر ذمہ دارانہ قدم نے اسی کے ملک کے سب سے بڑے شہر میں خدا کی قسم میرے ساتھ رہنا, جو کہتا تھا میں دنیا کا سب سے بڑا راجا ہوں, جو کہتا تھا میں دنیا کا سب سے بڑا راجا ہوں, جسے چاہوں گا لڑاؤں گا, جسے چاہوں گا معاف کروں گا, جسے چاہوں گا چھوڑوں گا, جسے چاہوں گا سزا دوں گا, جسے چاہوں گا روکوں گا, جسے چاہوں گا بڑھاؤں گا. اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکت نے اسی کے ذمہ دار شہر میں ایک ایسا ذمہ دار جوان پیدا کیا. میرے ساتھ رہنا, ایک ایسا ذمہ دار
जवान पैदा किया जिसने टैक्सी वालों से वादा किया कि तुम्हारे टैक्सी के किराए में इजाफा होगा, जिसने गरीब लोगों से वादा किया कि तुम्हारे भत्ते में इजाफा होगा, जिसने लोगों से वादा किया तुम्हारे कर्ज माफ किए जाएंगे, जिसने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए होने वाले कामों में इजाफे का वादा किया। मेरे साथ रहना ताकि समझ सको, समझो अल्लाह की हिकमत तुम्हें समझ में आ जाएगी। पूरी तवज्जो चाहता हूं। जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था कि मैं सब जगह जीत चुका हूं, अपने शहर में एक जिम्मेदार जवान से हार गया। नहीं, मैं आपको बड़ी अजीब जगह पे ले जाना चाहता हूं और आखिरी मजमे के आखिरी जवान तक की आवाज आसमान तक बुलंद रहेगी। पूरी तवज्जो। एक जवान से हार गया। किस वजह से हार गया? जिम्मेदारी की वजह से। गैर जिम्मेदारी की गुफ्तगू और जिम्मेदार वादे, गैर जिम्मेदारी की गुफ्तगू और जिम्मेदार सुखद, गैर जिम्मेदारी की गुफ्तगू और जिम्मेदार कांधे। महसूस कर पा रहे हो कुछ? एक जिम्मेदार जवान ने न्यूयॉर्क शहर में उसको हरा दिया जो हर जगह जीत का ऐलान करता था, हर जगह जीत का ऐलान करता था। शहर हारने वाला शहर हार गया। पर मुल्क भी तो हारा है ना, सिर्फ शहर ही नहीं हारा, मुल्क भी हारा है, मुल्क भी हारा। अब मैं क्या करूं कि मैं दोनों से अगर सवाल करूं, जिसने मुल्क हराया हो जिसने शहर, कि मौला किसे मानते हो, तो दोनों का जवाब अली मौला होगा। जिम्मेदार मेरे साथ रहना। जिम्मेदार क्या करता है और गैर जिम्मेदार क्या करता है? गैर जिम्मेदार खाता है। गैर जिम्मेदार क्या करता है? खाता है। और जिम्मेदार क्या कहता है? हलाल खाता है। हाय हाय। गैर जिम्मेदार क्या करता है? बोलता है। जिम्मेदार क्या करता है? सच बोलता है, सच बोलता है। गैर जिम्मेदार क्या करता है? जो दिल में आता है करता है। जिम्मेदार क्या करता है? जो सच होता है वो करता है। गैर जिम्मेदार क्या कहता है? हम सबका साथ देंगे, जिसका साथ देंगे वो कामयाब हो जाएगा। जिम्मेदार क्या करता है? नहीं, जो सच होगा हम उसका साथ देंगे, और फिर हम जिसका साथ देंगे अगर वो सच हुआ तो कामयाब हो जाएगा। कुछ महसूस कर पा रहे हो? जिम्मेदारी ग़िज़ा के दरमियान जब आती है तो इंसान हलाल चूज करता है, ग़िज़ा का टेस्ट नहीं देखता। ग़िज़ा का टेस्ट नहीं देखता। अच्छा, आप सोचते होंगे शायद शियों में ये हलाल हराम है, आप ये सोचते होंगे ये नजिस पाक शायद मुसलमानों में। नहीं, मैं दूसरी जगह दिखाता हूं। जेल में गांधी ने रोटी खाने से मना कर दिया। जेल में महात्मा गांधी ने, काजिम भाई, रोटी खाने से मना कर दिया। पूछा गया क्यों मना कर रहे हो? उनका, भाई जी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि ये रोटी जिसने पकाई है, किचन में जो शख्स गया है आज के किचन में काम करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उस पे 302 का मुकदमा है। और मैं कातिल के हाथों से बनाई हुई रोटी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो मेरी स्पिरिचुअलिटी को खराब करेगी। समझिएगा, वो मेरी रूहानियत को मैला करेगी। महसूस कर पा रहे हैं भैया? मैं किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना? महसूस करना मैं कहां लेके जाना चाहता हूं। ठीक है, तुम कौन सी कौम हो इसे समझो। दुनिया में दो कौमें हैं, एक हलाल खाती हैं, एक हराम खाती है, लेकिन एक तीसरी कौम भी है, एक तीसरी कौम है। इसे समझना कि ये कौन सी कौम है। इसी कौम को पहचान लोगे, सब समझ में आ जाएगा। हलाल खाने वाली भी कौम है, हराम खाने वाली भी कौम है। जो जेलर था उसका भी वही अकीदा था, गांधी का भी वही अकीदा। तरीक़े जिंदगी अलग अलग, तरीक़े जिंदगी अलग अलग। गांधी ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, चूंकि कातिल के हाथ की रोटी खाऊंगा तो मुझ में असर वो आएगा जो कातिल में होगा, जो कातिल में होगा वो असर मुझ में आएगा। भाई पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, मुझ में आएगा। तो दुनिया में कौमें बढ़ी, कौमों ने खाना शुरू किया, काम करना शुरू किया, कौमें बढ़ी। कुछ हलाल खाने वाली हुई, कुछ हराम खाने वाली हुई। फिर कौमों ने दुनिया में नाम करना शुरू किया। तुम्हें पता है, नाम हुआ, खत्म हो गया।
نعرے لگے ختم ہو گئے, پروگرام آیا ختم ہو گیا, تھوڑا سا آگے بڑھے ختم ہو گئے. پتا ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا اب تیسرے حصے میں بٹ رہی تھی. ایک وہ قوم تھی جو بس حلال کھاتی تھی, ہم وہ تھے کہ ہم نے تبرک کھا کے زندگی گزاری. نہیں سمجھے, اسے اور سمجھاتا ہوں. خطابت کے اس جملے سے, وکالت سے اب خطابت کی طرف آ رہا ہوں تاکہ سمجھ سکو. تمہاری آواز راستے تک اگر نہ گئی تو کلب رشید کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتا چلے فاطمی جمع ہوئے ہیں, لوگوں کو پتا چلے حسنی جمع ہوئے ہیں, لوگوں کو پتا چلے حسینی جمع ہوئے ہیں. تمہیں بند لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. تبرک کی طاقت کو اگر دیکھنا ہے بھائی, 12 دن جنگ ہوئی, 12 دن حرام کھانے والا ہار گیا, تبرک کھانے والا جیت گیا. یہ مجلس کے تبرک کی طاقت ہے جو تمہاری سوچوں کو اتنا پاک بنا دیتی ہے کہ تم اپنے ہر عمل میں یہ دیکھتے ہو کہ ہمارا عمل عدالت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے, عدالت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے. میں بھی سوچ رہا تھا, یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم کل حملہ کرنے والے ہیں, یہ اعلان کر رہے تھے ہم پرسوں حملہ کرنے والے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کلب رشید کہیں ملک بھی حملہ کرنے کے پہلے اعلان کرتا, مگر ہم نے دیکھا کہ یہ اعلان کیا اس لیے جا رہا تھا کہ علی کے بتائے ہوئے جنگ کے اصول یہ ہیں کہ دشمن پر سوتے ہوئے حملہ نہیں کیا جاتا. ہائے 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 ہائے, تہذیب جنگ ہے کہ دشمن کو بتا کے حملہ کرو, بتا کے, اور بتا کے حملہ ہوتا. تو میرے عزیزوں, سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسانیت. انسانیت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ذمہ دار انسان. ایک وکیل ہے, انسان ہے, مگر اگر میں آپ سے اس کے تعارف میں کہوں ذمہ دار وکیل ہے, تو آپ کس کو وہ کیس دیں گے, وکیل کو یا ذمہ دار وکیل کو؟ ایک ڈاکٹر ہے, میں نے کہا ذمہ دار ڈاکٹر ہے, آپ پھر کسے دکھائیں گے, ڈاکٹر کو یا ذمہ دار ڈاکٹر کو؟ ایک مولوی ہے, میں نے کہا ذمہ دار مولوی ہے, آپ کس کے پیچھے چلیں گے؟ ذمہ دار. دیکھو, غیر ذمہ داری اور ذمہ داری میں بس اہم فرق ہے. بہت سارے ہمارے علماء جو گھروں میں بیٹھے, جو شاید فیس بک اور انسٹاگرام پہ اویلیبل نہیں. ہمارے ہاں عالم انسٹاگرام نہیں بناتا, ہمارے ہاں عالم کردار بناتا ہے. مولویت کا کورس 3 سال کا بھی کر دیا جائے تو اسے پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن جائے گا. اسے 3 سال کا کورس پڑھنے کے بعد 30 سال جینا پڑے گا اسی آدیشوں پر جو آدیش اس نے کتابوں میں پڑھے ہیں, تب جا کے قوم مانتی ہے. ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, عادل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور ہماری مسجدوں میں عادل کے پیچھے نماز پڑھنے کی پرتھا ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے, خدا نے ہمیں یہ دی ہے اپنے رسول کے ذریعے. تو انداز لگاؤ, جو قوم عادل امام کے علاوہ کوئی امام نہ رکھتی ہو 2 رکعت کے لیے, وہ ظالم لیڈر کو کیسے مان سکتی ہے؟ کیسے مان سکتی ہے ظالم لیڈر کو؟ تو گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. ذمہ دار انسان, ذمہ داری کے ساتھ چلتا ہے. ذمہ دار صرف اپنے فائدے نہیں دیکھتا, ذمہ دار اپنے کرتویوں کو دیکھتا. ہمارا ہر ایک شیعہ جب باہر نکلتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اس کا کرتویہ کیا ہے. میں اس جگہ اپنا کرتویہ سمجھتے ہوئے اپنے
ज्वाइंट सीपी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस परमिशन के लिए, अपने डीसीपी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उस लोकल ऑफिसर का जिसने सिग्नेचर किया है, और हमारे एसएचओ का जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें मदद की। याद रखें, ये वो कौम है, इसके साथ 2 कदम चलो तो ये हजारों कदम चलती है। समझ रहे हैं? वो ये कदम इसलिए चलाती है और इसलिए आगे बढ़ती है। मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूं ना, मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूं। एक कंट्री हो, अज्यूम करना एक कंट्री हो, एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट हो, एक कंट्री हो, एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट हो। उस प्रेसिडेंट के मान लीजिए इंटरनेशनल लोग खिलाफ हो गए, उसके बाद उस कंट्री पे हमला होने लगा। सबसे पहला काम उस मुल्क के जो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं सर आप अपनी पोजीशन छोड़ के इस्तीफा दे दीजिए, मुल्क बच जाएगा। यही होता है ना पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में क्या होता है? आपकी मस्जिद में भी, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आपकी मस्जिद में भी किसी मौलवी की वजह से अगर आपके यहां 5 हिस्से हो जाते हैं कौम के, तो आप मौलवी से कहते हैं आप घर बैठिए, हम आपको घर बैठ के तनख्वाह देंगे। लेकिन आपके सबब झगड़े हो रहे हैं, आपके सबब फसाद हो रहा है, आपके सबब कौम 2 हिस्सों, 3 हिस्सों, 5 हिस्सों में बट रही। यही होता है ना, या इसके अलावा कुछ होता है ना? फिर सोचो कि एक कौम अपने आलिम को कितना चाहती होगी। हमले पे हमले हुए लेकिन रहबर नहीं बदला। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है तुम्हारे साथ, जिंदा मिसाल दे रहा हूं तुम्हें। सोचो सलाम उस कौम पे हमले हैं, करेंसी टूटी जा रही है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, सफर सख्त होता जा रहा है, एविएशन में स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई नहीं है, तेल और ऑयल खरीदने वाले लोग दांत दिखा रहे हैं, तिजारत करने वाले लोग दांत दिखा रहे हैं। ये सारे जिनकी औकात नहीं है, 2 रिकत के भी नहीं है, वो खड़े होकर कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे और हम ये करेंगे। मगर उस पूरी कौम ने अपना लीडर नहीं बदला, उस पूरी कौम ने अपना लीडर नहीं बदला। फिर तुम्हें कह रहा हूं, इस एक लफ्ज से समझने की कोशिश करना जवानों तुम्हें। उस पूरी कौम ने लीडर इसलिए नहीं बदला कि उस लीडर का ना ईमान बदला था ना इमाम बदला था। ठीक है, इंसान बड़ा होता है तो क्यों नहीं बदला? क्योंकि रहबर है और जिम्मेदार रहबर है, और सिर्फ अपने मुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदार है। और जिम्मेदारी का एहसास आपको इसलिए दिखाऊं, एक शिया नहीं है उस खित्ते कायनात में, बैतुल मक़दस के इलाके में एक नहीं है, फिर भी गुफ्तगू है वहां के लिए। क्यों है? इसलिए कि मजलूम कहीं मारा जाए और इंसान ना बोले तो उसकी इंसानियत पे शक है। तो बोल क्यों नहीं रहा? इंसानियत का कत्ल हो रहा है और तू बोल नहीं रहा। तो हुजूर, वकीलों में जो जिम्मेदार वकील हो उसको केस मिलेगा, जो जिम्मेदार डॉक्टर हो उसको मरीज मिलेगा, जो जिम्मेदार मौलवी हो उसको कौम मिलेगी, जो जिम्मेदार रहबर हो उसको उम्मत मिलेगी। समझ रहे हैं हमारी बात को? जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अब अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक मुल्क हो, मुल्क जंग के दौर में हो, आपके पास एक फौज हो और आपको फौज का अलम किसी को देना है, तो किसको देंगे? गैर जिम्मेदार को देंगे या जिम्मेदार को देंगे? सोचिए, आपके पास एक मुल्क है, मुल्क की एक फौज है, मुल्क पे हमला हो रहा है, आपको फौज को सजाना है और उसका एक सिपह सालार है, आपको कल अलग देना है, किसे देंगे? आप जिसे जिम्मेदार समझें वो कितना जिम्मेदार होगा? जब समझ में आ जाए तो समझो मोहम्मद जिसे जिम्मेदार समझे। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद साथी ज़बान है, पब्लिक की भाषा है और पब्लिक का दिमाग है। समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल जंग नहीं हो रही है। अली को मानने के लिए ये तो सच है कि तहारत की जरूरत है,
मगर ये भी सच है कि भेजे की भी जरूरत है। भेजा नहीं हुआ तो अल्लाह का भेजा हुआ समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं कहता हूं किसी को शिया बनाने की कोशिश मत किया करो। अरे जिनके बाप दादाओं ने देख के ना माना, एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को, अपोजिशन को, हिंदुस्तान की छोटी बड़ी सियासी पार्टियों को यकीन दिलाता हूं दिल्ली के जामा मस्जिद के इस मिंबर से कि अगर किसी का नाम हैदर हो, अब्बास हो, जाफर हो, कासिम हो, तकी हो, नकी हो, अस्करी हो, तो यकीन रखना वफादार होगा, गद्दार नहीं होगा। मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद बस मेरे अजीजान, हो गए 35 मिनट हो गए हैं? अभी 25 मिनट। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद और ये गले से जो नारे ऐसे नहीं निकलते। अम्मा अब्बा ने खूब नारे लगाए हैं तो हम लगा रहे हैं नारे। माँ बाप ने नारे नहीं लगाए होते तो बच्चे नहीं लगा पाते नारे। मैं इसीलिए कहता हूं कि मजलिस फरशियाजा पे बैठ के सुना करो। अगर गाड़ी में बैठने की तुम्हारी ख्वाहिश रही और तुमने इस 2025 में गाड़ियों में बैठ के मजलिस सुनी तो खुदा की कसम तुम्हारी आने वाली नस्लें घरों में बैठ के मजलिस सुनेंगी, इमामबाड़ों में नहीं आएंगे। साथ मिल गए अच्छा जुमला सुना, आखिरी जुमला, ताकि तुम्हारे कदम जब इमाम बाड़ों के लिए निकले तो ठहरा ना करें। तुम मजलिसों में आओ तो अपने दोस्तों के लिए रुक ना जाया करो। तुम मजलिसों में आओ तो चाय, सिगरेट, गुटखा, बार की बातें, हंसी मजाक, इनके लिए अपने इस जन्नती टाइम को कुर्बान ना किया करो। सुनो, रसूल से लेके हर एक मासूम से पूछा गया कि रिस्क का बेहतरीन वक्त क्या है। सब ने यही कहा, सुबह की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद दरवाजा खुला रखो, दरवाजा खुला रखो। रिस्क का बेहतरीन वक्त है, रिस्क का बेहतरीन वक्त है, रिस्क का बेहतरीन वक्त है। मगर इन्हीं मासूमों ने बताया अज़ा खाना जब भी खोल दो हुसैन की तरफ से रिस्क आ जाता है। क्या कह रहे हैं? जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। इस तरह मजलिसों महफिल की तरफ दौड़ा करो जिस तरह हाजरा पानी के गांव में एक तो होती है दवा और एक होता है टोटका।
सुना है ना, देसी जबान में आपको समझा रहा हूं। अगर तुम्हें मुसीबतों को मुंह चिढ़ाना हो तो अहले बैत की फजीलत सुन के मुस्कुराना सीख लो। मैंने बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे दरमियान, मुसीबतों को मुंह चिढ़ाना हो तो अहले बैत की फजीलत सुन के मुस्कुराना सीख लो, और कोशिश करने के बाद भी जब चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए तो सिस्टम की जांच करो, रोटी में हराम शामिल हो चुका है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है। ये अहले बैत हैं। इंसान, इबादत और हुसैन। जिम्मेदार इंसान बड़ा इंसान होता है जब ये जिम्मेदारी निभाते 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 जिंदगी के उस पार जाता है तो इसे एक मंजिलत मिलती है, उसका नाम है हुसैनियत। हुसैनी बन जाता। हुसैनी का मतलब क्या है? हुसैनी का मतलब क्या है? जो जिम्मेदार हो, जिम्मेदार हो फर्श अज़ा के प्रति, उम्मत के प्रति, देश के प्रति, शहर के प्रति, हमसाये के प्रति, जो सबको एक साथ लेके और एक निगाह से देखता। मैं एक जुमला आपको अपनी सच्ची जिंदगी का बताता हूं, एक वाकया बताता हूं छोटा सा। सच्चर कमेटी का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैं? सच्चर कमेटी मशहूर है। तो जस्टिस सच्चर के साथ मेरा एक सफर और हम एक प्रोग्राम में गए थे। बहुत ही सेकुलर आदमी, बुजुर्ग आदमी। कौन हिंदुस्तान में जस्टिस सच्चर का नाम नहीं जानता? सभी जानते। तो उनकी मुखालफत हो गई स्टेज पे। अब स्टेज भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का था, वो भी गैर मुस्लिम थे, मैं अकेला वहां मुसलमान था। तो मैंने कहा भाई मुझे आपकी ये जियाफत जो इनके साथ आप कर रहे हैं वो समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने जिस हिंदुत्व को पढ़ा है और जिस सनातन को मैं जानता उसमें इतने छोटे दस्तरखान कब से हो गए कि आपने अपने लोगों के भी लुक़मे चुन चुन के और गिन गिन के देना शुरू कर दिया। अब मैं अपने यहां पलटा, मैंने अपने इलाके में, अपने लोगों में, अपने कौम में, अपनी मुनाजातों में, अपनी दुआओं में हुकूक इंसानियत को झांक कर देखा तो एहसास हुआ कि रमजान की पाक रोजे के बाद, मगरिब की नमाज के बाद आप एक दुआ पढ़ते हैं जिस दुआ में आप कहते हैं अल्लाहुम्मा शफी कुल्ले मरीज, परवरदिगारा जितने मरीज हों उन्हें शिफा अता फरमा। क्या आप डिक्लेयर करते हैं कि वो मरीज सुन्नी है, कि शिया है, कि वो मरीज जैन है, कि वो हिंदू है, कि वो क्या है, कि वो क्या है? बताएं, क्या आप डिक्लेयर करते हैं? नहीं ना। जो भी मरीज हो परवरदिगारा उसे शिफा अता फरमा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका दस्तरखान इतना बड़ा है कि जहां चेहरा देख के पानी नहीं पिलाया जाता, प्यास देख के पानी पिलाया जाता। आपको आपके अकीदे के करीब लाता हूं। आखिरी जुमले हैं आप साहब। आप जब सबील लगाते हैं, ये नौजवान चंदे करके आप लोग सबील लगाते हैं ना, तो सबील की टैंक पे क्या लिखते हो? सबील हुसैन ना। तो इस सबील हुसैन के नीचे क्या ये लिखते हो कि जो अलम उठाए वही पिए, जो ताबूत उठाए वही पिए, जो मजलिस में आए वही पिए, जो अली वलीउल्लाह कहे वही पिए? नहीं, क्योंकि आपका उसूल है कि आप पानी का इंतजाम प्यासे के लिए करते हैं, क्योंकि मजलिसों में आप एक प्यासे को रोते हैं। प्यास का ताल्लुक इंसान और इंसानियत से। क्यों शायर कहता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन की बहुत बड़ी भीड़ है। और मैं आज कह रहा हूं, आपके यहाँ 40वें में जुलूस होता है, आपके यहाँ 7 रबीउल अव्वल को जुलूस होता है। मैं आज कह रहा हूं आप लोगों, जवानों, अपने अपने इलाके में छोटी छोटी टुकड़ी बनाना। उन टुकड़ियों का काम बस ये हो कि जव्वार जब जा रहे हैं, जब वो ताजिए के पीछे चल रहे हैं, तो उन्हें रास्ता बताएं। उसी टुकड़ियों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे नारे लगाएंगे जिस नारे लगाने की वो जगह नहीं है। समझ रहे हैं? ये कुछ जवान
जो इधर उधर की बातें सुन के भ्रमित होके कोई भी ऐसी बात जिसकी वो जगह नहीं है शुरू कर देते हैं। मैं इस मजमे को बता रहा हूं, पता नहीं आदिलिया हैं कि नहीं, लेकिन ज्वाइंट सीपी ने मुझे बुलाया था, मेरे दोस्त हैं, बहुत इज्जत करते हैं। कह लेंगे ये इतने लोग, मैंने कहा भाई मेरी भीड़ नहीं है तो हुसैन की भीड़ है, मेरी नहीं है। इस भीड़ का कोई मालिक नहीं है, इसका मालिक पर्दे गैब में बैठा है। कह लेंगे मौलाना साहब हमारे पास रिपोर्ट थी 20,000 30,000 लोग होंगे, अब जब फाइनल रिपोर्ट आई है 70,000। मैंने कहा भाई यहां की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया कि भीड़ कितनी आई और कहां से आई। भाई क्या कह रहा हूं, मैं मजलिस का नुक्ता नहीं पढ़ रहा, मैंने किसी टोली को यहां जमा नहीं किया है। मैं इन जवानों में से चेहरों से जानता हूं लोगों को, 25 साल से खिदमत कर रहा हूं, बहुत मुमकिन है मैं नाम ना जानता हूं जवानों का। जवानों तुम जो 16 बरस से 22 साल के हो, तुम्हारा कोई सुए इस्तेफादा ना करे, तुम्हारा कोई गलत इस्तेमाल ना करे, डिजिटल वेबसाइट पर तुम्हारा कोई गलत इस्तेमाल ना करे, ध्यान रखना। मैंने वो बातें जो ज्वाइंट सीपी से कही वो यहां बता रहा हूं। मैंने कहा भाई हमारा मजमा नहीं था, हमारी भीड़ नहीं थी, न जाने लोग कहां से आ गए, कहा एक्सपेक्टेड तो होगा। मैंने कहा भाई कुछ नहीं पता कौन कहां से आ रहा है, क्या हाजत लेके आ रहा है। फिर मैंने ठहर के कहा भाई मैं आपको बताऊं, करबला में जो सारे इंतजाम होते हैं ना, तो हम ये सोचते थे इराक संभाल रहा है, हम ये सोचते थे ईरान संभाल रहा है, हम ये सोचते थे फलां संभाल रहा है। वहां भी भीड़ बढ़ती चली जाती है, भीड़ बढ़ती चली जाती है। कुछ समझ में आ रही है बात, चाहे वो दिल्ली का मजमा हो या करबला का, उस पर्दे वाले को पता है यहां कैसे संभालना है, वहां कैसे संभालना है। सलामत रहो। सलामत रहें। बस मेरे अजीजों खत्म कर रहा हूं यही। आपको बता दूं आज उस बीबी की शहादत की शब और मजलिस जो कभी अपने बाबा को रोई, और आसिफ भाई अजीब रिवायतें, अजीब रिवायतें, तपते हुए धूप में बदलते हुए हसनैन के चेहरे को अली ने देख के सवाल किया, लाडलो ये तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों बदले हुए हैं? बाबा बाबा अम्मा जिस दरख्त के साये में बैठकर नाना को रोया करती थी, लोगों ने उस दरख्त को काट दिया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आपकी सदाई गिरिया बुलंद हो गई, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम लफ्जों में जुलूस चलेगा। बड़े इज्जतों के साथ हाजिर रहना, जुलूस में, नोहे में, मातम में पूरे मुकम्मल शिरकत करना, यहां से लेके जहां तक जुलूस जाता है। क्यों पता है? इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी ने कहा है, इसलिए कि कोई तुम्हें देख रहा है। जो तुम्हें देख रहा है ना, जब हर मजलिस में सैयदा होती हैं तो फिर सैयदा की मजलिस में हुसैन तो होंगे ना, सज्जाद तो होंगे ना। मौला सबसे ज्यादा किस पे मुसीबत गुजरी? जिक्र किया मेरी दादी पे, मेरे मौला अंबिया से भी ज्यादा। कहा अंबिया से भी ज्यादा? कहा अंबिया में फला की मुसीबत बहुत, का उससे भी ज्यादा। कहा मौला उनकी तो इतनी उम्र। कहा तू मुद्दत देख रहा है, शिद्दत नहीं देख रहा। सहरा की मुसीबतें
आराम आराम से पढ़ूंगा, बस 2 रिवायतें सुन लो मुझसे, 2 रिवायत। तारीख कहती है, पहले मैं आपके जहनों को रोने के लिए आमादा कर, रोने। ये जो गिरिया आता है ना, ये गिरिया आपको पता है क्या है? ये आपका गिरिया जन्नत की चाबी है, चाबी। ये ऐसे ही आंख के आंसू बाहर नहीं आते, और इसकी भी कैटेगरीज हैं। मैं 22 साल 23 साल से तो आपको सुना ही रहा हूं। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा, मौला कैसे रोए? आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, आंखों से बाहर आए सालेहीन का, दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया, सीने तक आए इमामों। ये मेरे मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए, कहा मेरी दादी फातिमा ज़हरा। इसलिए जब भी रोया करो आवाज़ बुलंद रोया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयद शोना। बस 2 रिवायतें खत्म हो जाएंगी, अलम देखोगे, अलम के साथ बाहर चले जाओगे। पर तुम्हें क्या बताऊं, वो सैयद सज्जाद किसी कोने में बैठ के अपनी दादी को रो रहे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अपना बाजू दीवार से लगाए, हुसैन फरमाते अम्मा सलाम, कोई जवाब नहीं। अम्मा तेरा हुसैन पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं। अम्मा यकीन नहीं आता कि मेरी जिंदगी में, अम्मा यकीन नहीं आता तेरी जिंदगी में तेरा हुसैन इतना गरीब हो जाए, मैं पुकारूं और तू जवाब ना दे। उलमाए ईरान और इराक 2 तरीके से इस मसाइब को पढ़ते हैं। कुछ कहते हैं बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बुलंद हुए, मेरा लाल हुसैन मेरे करीब आ जा। कुछ कहते हैं एक हाथ उठा, दूसरा उठ के पसलियों में ठहर गया। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बोलो रात आ गई, बोलो फिर रात की सुबह आ गई। तुम्हें मालूम है ना सैयदा की हालत कैसी है? बैठ के नमाज अदा कर रही हैं। न जाने सैयदा ने क्या देखा, न जाने ज़हरा के अंदर ताकत कहां से आई, अपने घर के सारे काम अंजाम दे दिए। बोलो अली आ गए, बोलो ज़हरा बैठी हुई हैं, बोलो अली गिरिया कर रहे हैं। बोलो जब ज़हरा को गिरिया करता देखा तो सवाल किया, बिन्ते रसूल आप गिरिया क्यों कर रही हैं? फरमाने लगी तुम्हारे लिए सारे जवाब हैं जो अली को चाहते हो। फरमाने लगी मैं दुनिया के सबसे मजलूम तरीन शख्स को अपनी नजरों के सामने देख रही, ये ज़हरा फरमा रही मैं दुनिया के, सलाम मेरी शहजादी, अपनी पसलियों का शिकवा नहीं किया, अपने जख्मों का तस्करा नहीं किया, अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं किया। फरमाने लगे मैं दुनिया के सबसे मजलूम तरीन शख्स को अपनी नजरों के सामने देख रही हूँ। लो एक अजीब वक्त आया, वो वक्त क्या था आपको मालूम है? वसीयतें शुरू हो गई। आप जानते हैं ना, एक दिन फरमाती है अबुल हसन आप जब मुझे दफन कर दे तो मुझे भूलना मत, मेरी कब्र पे जरूर आना। अबुल हसन जब आप कब्र पे आना तो यासीन जरूर पढ़ना। एक दिन अली कब्र ज़हरा पे यासीन पढ़ रहे थे, कब्र से आवाज आई अबुल हसन जल्दी से उठिए घर जाइए, मेरा हुसैन प्यासा है। जज़ाकुमुल्लाह। बोलो वो वक्त आ गया। मेरी मजलिसों के जुमले अगर तुम्हारे जहन में हो तो एक जुमला दोहराता हूं। 3 मैयतें ऐसी हैं, 3 मैयतें ऐसी हैं जिसके गुस्ल देने वाले चिल्ला के रोए। सीन से सकीना, सीन से सज्जाद, सीन से सैयदा। बोलो सकीना को गुस्ल दिया गया, ज़ैनब चिल्ला के रोई। सैयद सज्जाद ने सवाल किया फूफी अम्मा इतना गिरिया क्यों है? फरमाया मेरे लाल ने पूछ। फूफी अम्मा हक का वास्ता। फरमाया मेरी सकीना इतनी प्यासी थी
کہ جب ہم نے ایک چلو پانی چہرے پر ڈالا پانی سوکھ گیا. بولو سجاد کو غسل دیا گیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بولو سجاد کو غسل دیا گیا. باقر چلا کے روئے اللہ اکبر. چاہنے والے نے کہا مولا اتنا گریا کیوں ہے؟ فرمانے لگے میرے بابا کے گلے کا زخم سوکھا نہ تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بولو زہرا کو غسل دیا گیا. علی چلا کے روئے اللہ اکبر. سلمان فرماتے ہیں مولا اتنا گریا کیوں ہے؟ رو کے فرمایا سلمان میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں تمہیں ایک روایت سنا رہا ہوں. جب زہرا کو دفن کر لیا قبر رسول کی طرف یوں بیٹھے, ہاتھ قبر زہرا کی طرف تھا, چہرہ رسول کی قبر کی طرف. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری زہرا آج سے آپ کے پاس ہے. یا رسول اللہ میری زہرا سے پوچھ لیجئے گا, امت نے بہت ستایا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یہی ایک تصویر. آخری جملہ ہمت نہ ہارنا. آخری جملہ پرسہ دینا سب کو آج کی رات. سید سجاد تمہیں بتایا نا قبر زہرا کی طرف علی کا ہاتھ تھا, چہرہ قبر رسول کی طرف تھا. بالکل یہی حالت تھی. سید سجاد شام غریبہ کے بعد عرب کا ایک دستور بتا رہا ہوں. عرب کا ایک دستور تھا جب دنیا سے ان کا کوئی عزیز مر جاتا چلا جاتا تو اسے دفن کر کے گھر آتے, سینے خانہ میں ایک چراغ جلاتے, پھر سارے عزیز بیٹھ کے اپنے عزیز کو یاد کرتے. اب جملے سننا. سجاد شام غریبہ میں زمین کربلا پہ بیٹھ کے ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے رکھا, چہرہ بابا کی لاش کی طرح مقتل کی طرف کر کے فرماتے بابا عرب تو چراغ جلایا کرتے تھے, انہوں نے گھر جلا دیا. بابا خیر میں, بابا خفیہ کے بیٹھنے کی جگہ, بابا تیرا سجاد ماں بہنے ننگے ساتھ کربلا.